बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 9th। Hopefully you will be fine. Grade 9 in Pak studies, as we are studying chapter number 3 land and environment. Today we will study page number 62 and we will cover these topics: climatic conditions of Pakistan, and subtopics will be the north and northwest mountainous region, the upper Indus plain, the coastal area of lower Indus valley, and the plateau of Balochistan. Now let's move towards book, page number 62. Climatic conditions of Pakistan. Average pattern of weather of some place or a country over a long period is called climate. Average pattern of weather of some places or a country over a long period is called climate. Weather is the short term atmospheric condition. You can say that cloudy, windy, sunny, rainy, these are weather conditions on daily basis for short time period, and for longer time period the weather is called climate. For example, summer and winter. Now here, for example, the climate of Lahore is semi humid and extremely hot during summers. गर्मी के मौसम में लाहौर का गर्मी में मौसम में लाहौर का जो मौसम है वो नमी वाला रहता है, सेमी ह्यूमिड रहता है और एक्सट्रीमली हॉट रहता है. एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, और विंटर्स में कोल्ड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज विच इज़ 63. रीजन्स ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू टेम्परेचर. नाउ लुक एट दिस. Pakistan is divided into 4 regions with reference to different land features. The 4 regions are as follows: the north and northwest mountainous region, पहाड़ी इलाका जात हमारे जो हैं, शुमाली इलाका जात. The upper Indus plain, the coastal area of lower Indus valley, and the plateau of Balochistan. Now number 1 is the winters are extremely cold in the north and northern west areas of Pakistan. As you can see that in our northern areas, as you know that in our northern areas there are high mountains which covered in winters with snow and in summer also covered with snow. So these are extremely cold areas of Pakistan. The temperature falls below the freezing point. For example, the average temperature of Skardu in the month of January is below freezing point. The average temperature of these areas is below freezing point in winter season. In most of the areas it snows heavily. बर्फ़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी होती है. And it extremely cold. However, the summers are pleasant. बहरहाल गर्मी का मौसम जो हम जिन मंथ्स को समर सीज़न कहते हैं, दैट इज़ फ्रॉम मे टू सितंबर. सो दीज आर प्लेजेंट ओवर देयर. जून, जुलाई एंड अगस्त, when we as living in Wakant, when we practice hot weather condition. So in these areas, northern areas like Skardu, the weather is pleasant. वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, जब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एज नाउ डेज, आजकल जैसा कि जून का मंथ है और आगे आने वाला मंथ जुलाई और अगस्त है, इन मंथ्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो हमारे इन इलाकों में जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन स्कर्दू जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे मौसम जो है वो खुशगवार रहता है. द अपर इंडस प्लेन. द अपर इंडस वैली हैज़ अ स्पेसिफिक लैंड क्लाइमेट. द प्लेन एरियाज़ आर टू हॉट ड्यूरिंग द समर. हीट वेव्स अपीयर ड्यूरिंग डे टाइम इन द मंथ्स ऑफ मे, जून एंड जुलाई. इंडस वैली हैज़ अ स्पेसिफिक लैंड क्लाइमेट. प्लेन एरियाज़ में समर के मौसम में हीट वेव्स चलती हैं दिन के वक्त.
मई के महीने में, जून में और जुलाई में। ओकेजनली इट रेन्स अलॉन्ग विथ विंड्स, हवाओं के साथ बारिश होती है। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन अपर इंडस प्लेन। समटाइम्स द टेम्परेचर एक्सीड्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड। Oh, it's too hot there in the month of June. However, बहरहाल during the winters the temperature decreases and the weather becomes pleasant. विंटर सीज़न में यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और मौसम खुशगवार हो जाता है। द कोस्टल एरिया ऑफ लोअर इंडस वैली। In the coastal area of Pakistan, land breezes and sea breezes decreases the intensity of heat. कोस्टल एरिया समंदर के करीब के जो इलाके हैं वहाँ पे समंदरी हवाएं और ज़मीनी हवाएं जो हैं वहाँ के मौसम को मुतदिल रखती हैं, इंटेंसिटी हीट की कम करती हैं, घटाती हैं। ड्यू टू दिस फैक्टर, इस वजह से द समर्स इन दीज एरियाज़ आर नॉट एक्सट्रीम, गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। द एवरेज टेम्परेचर इज़ अबाउट 32 डिग्री सेंटीग्रेड। दीज एरियाज़ एक्सपीरियंस रेयर कोल्ड वेदर, यहाँ पर सर्दी का मौसम भी बहुत ज़्यादा कम होता है। द प्लेटू ऑफ बलूचिस्तान। ड्यूरिंग विंटर्स दिस रीजन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। ड्यूरिंग विंटर्स दिस रीजन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। विंटर्स में ये इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। However, बहरहाल ड्यूरिंग समर में द टेम्परेचर इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्दर्न हिली एरियाज़। टेम्परेचर समर में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरियाज़। द प्लेटू ऑफ बलूचिस्तान हैज़ द एरियाज़ लाइक सिब्बी वेयर द टेम्परेचर इन समर राइजेज टू एन अनबियरेबल डिग्री। वैसे भी सिब्बी जो है, अगर आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका कौन सा है तो आप कहेंगे सिब्बी। यहाँ का टेम्परेचर एक्सीड्स कर जाता है अनबियरेबल, जितना कि कंट्रोल भी नहीं, मतलब एक इंसान जो है वहाँ पे बहुत मुश्किल से सरवाइव करता है। समटाइम्स व्हेन द विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ रीच बलूचिस्तान, बाज़ औक़ात जब हवाएं जो आ रही होती हैं शुमाल से, वो जब बलूचिस्तान में पहुँचती हैं, दे कॉज एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ओके क्लास, थैंक यू। ग्रेड 9।